Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, safety first. Learning objectives. Safety first, first aid, hazards of fire, fire extinguisher. Accidents happen when people are careless or do not practice simple rules for safety. Safety first. Nowadays, with the increase in the number of vehicles, it is important for us to follow the safety rules seriously on the road. देखिए एक्सीडेंट्स आपके ज़्यादातर कब होते हैं जब आप केयरलेस होते हैं या फिर कुछ सिंपल सेफ्टी रूल्स होते हैं जो आप उसे फॉलो ही नहीं करते। अब आज के टाइम पे क्या है कि इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स हो गए रोड्स पे कि हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सेफ्टी रूल्स को सीरियसली फॉलो करें। ओके, अब आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, आपको मैच करने हैं इन साइंस को, राइट? We should also follow safety rules at home. However, sometimes accidents occur in spite of being careful. Let us study some ways to deal with some emergencies. अब देखिए हमको घर पे भी सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। वैसे तो आपके जो एक्सीडेंट्स है हम सेफ्टी रूल्स फॉलो भी करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम केयरफुल भी रहते हैं तो हो जाते हैं। तो देखिए ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट एड. We have learned that if we follow safety rules, we can avoid accidents. However, in the event of an accident, one should help the injured person immediately. The immediate help and treatment given to a victim before she is taken to the hospital is called first aid. फर्स्ट एड यानी फर्स्ट हेल्प जो किसी भी विक्टिम या इंजर्ड पर्सन को दी जाती है डॉक्टर के अराइवल से पहले। It is important to always have first aid kits ready in our homes and schools. Let us learn about some first aid tips for different types of injuries. Cuts, scratches and wounds. In case a person gets a cut, then the following steps should be taken. Wash the wound thoroughly with running water. Apply an antiseptic lotion on the affected area. In case of a deep cut, press the affected area with cotton wool to stop and blood. A tourniquet can be tied around the wound to reduce the blood flow. Wrap and tie the gauze bandage around the wound. In case the cut is caused by dirty or rusted object, consult a doctor and get an anti-tetanus injections. देखिए अगर कट्स, स्क्रैचेस एंड वुंड्स के केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले वुंड को थोरली रनिंग वाटर से धोना है, एक एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है अफेक्टेड पार्ट में, एंड इसके बाद अगर डीप कट है तो आपको क्या करना है, अफेक्टेड एरिया को प्रेस करेंगे कॉटन वूल से जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए, एंड देन एक टर्निकॉइट आप उसमें बांध सकते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। आपको रैप करना है गेस बैंडेज को वुंड के अराउंड, एंड अगर कट जो है किसी डर्टी या रस्टेड ऑब्जेक्ट से लगा है यानी जिसमें जंक लगा है उस ऑब्जेक्ट से लगा है, देन आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और एंटी टेटनस इंजेक्शन लगाना चाहिए। Sprains. A sprain is a condition in which the tissues are injured around the joints. In case of sprains, an ice pack should be applied and the affected part should be kept immobilized by tying an elastic bandage around the joint. Sprain एक कंडीशन होती है जिसमें टिश्यूज आपकी इंजर्ड हो जाती है जॉइंट्स के अराउंड, तो इस केस में क्या करना है कि आइस पैक लगाना है एंड देन अफेक्टेड पार्ट को मूव नहीं करने देना है और एक आपको इलास्टिक बैंडेज उस पर बांध देना है उस जॉइंट के अराउंड। एनिमल बाइट्स. Animals such as dogs, bats, cats and monkeys carry germs of a deadly disease called rabies in the saliva. Thus, it is important to get an anti-rabies injection for bites caused by them. अगर कभी डॉग, कैट या मंकीज काट लेते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि इन जानवरों के सलाइवा में एक डेडली वायरस होता है जिसे कहते हैं रेबीज। Wash the wound thoroughly with water and apply an antiseptic cream on it and cover it with a bandage. Take the patient to the doctor. In case of a snake bite, tie a tight bandage above and below the wound immediately. This prevents the spread of venom, poison in the body by reducing the flow of the blood. The patient should be rushed to the hospital. For wasp stings, apply vinegar or lemon juice. आपको देखिए क्या करना है, वुंड को थॉरली वाटर से धोना है, फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है, उसको बैंडेज से कवर करना है, अब पेशेंट को डॉक्टर तक लेके जाना है। अगर स्नेक बाइट के केस में टाइट बैंडेज आपको क्या करना है, जो वुंड है उसके ऊपर और उसके नीचे इमीडिएटली टाइट बैंडेज बांधना है जिससे कि जो पॉइजन है वो बॉडी में नहीं आपका फैल पाएगा एंड जो फ्लो ऑफ ब्लड आपका रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाना है पेशेंट को। अगर वास्प अब काट लेती है तो उसमें या तो आप विनेगर लगा सकते हैं या फिर लेमन जूस। फ्रैक्चर्स. अ क्रैक और अ ब्रेक इन द बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर. द फ्रैक्चर्ड एरिया शुड नॉट बी मूव्ड. फॉर एग्जांपल, इफ द बोन ऑफ द आर्म इज ब्रोकन, इमीडिएटली गिव इट अ सपोर्ट बाय टाइंग अ cloth sling across the neck and the arm to prevent movement. Take the patient immediately to the hospital. आपकी अगर किसी बोन में ब्रेक आ जाता है, क्रैक आ जाता है, उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। तो आपको फ्रैक्चर्ड एरिया को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, और अगर जैसे आपकी आर्म की बोन फ्रैक्चर्ड हुई है, ब्रोकन हुई है, तो इमीडिएटली उसको एक क्लॉथ स्लिंग से बांध लेना है
अक्रॉस द नेक, नेक से उसको बांधते हैं, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है. फॉर बर्न्स, वन कैन सफर बर्न्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, फायर, स्टीम, बॉइलिंग वाटर, क्रैकर्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड केमिकल्स लाइक एसिड्स. Minor burns, though minor burns are very painful, they can be treated at home. Let running cold water flow over the burnt part until the pain subsides. Apply an antiseptic lotion or cream to prevent infection. If an antiseptic lotion is not available, apply a paste of baking soda and वाटर. देखिए बर्न्स आपको किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, जैसे बॉइलिंग वाटर है, स्टीम है, केमिकल्स है. तो माइनर बर्न है तो आपको सबसे पहले रनिंग वाटर में, कोल्ड रनिंग वाटर में उसको वॉश करना है, देन एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है जिससे इन्फेक्शन ना हो. एंड एंटी लोशन नहीं है अगर आपके पास एंटीसेप्टिक लोशन, तो आपको क्या करना है, एक पेस्ट लगाना है बेकिंग सोडा एंड वाटर का. Severe burns. Sometimes the skin gets severely burnt and blisters are formed. Never to try to pick a blister. An open blister is an open wound. It can catch infection. Gently cover the burn with a clean piece of cloth or sterile gauze to protect it from germs and dust. If the victim is in a state of shock, give him a warm drink. Never try to give a liquid to an unconscious person. Dip a sterile piece of cloth in a solution of baking soda and use it as a wet compress. Severe burns must be treated by a doctor. सीवियर बर्न के केस में आपको क्या करना है कि जैसे आपके ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, बट ब्लिस्टर को प्रिक नहीं करना है क्योंकि इसमें फिर आपका वुंड जो है ओपन हो जाएगा और इन्फेक्शन होने का डर रहेगा. जेंटली आपको बर्न को कवर करना है क्लीन पीस ऑफ क्लोथ से और उसके बाद उसको जर्म्स एंड डस्ट से प्रोटेक्ट करना है. अगर विक्टिम जो है शॉक की कंडीशन में है उसे वार्म ड्रिंक दें, बट अगर वो अनकॉन्शियस है तो कोई भी लिक्विड ना दें. स्टेराइल पीस ऑफ क्लोथ को आपको डिप करना है एक सोल्यूशन में जो होगा बेकिंग सोडा का, एंड देन उसको एज अ वेट कंप्रेस यूज़ करना है. सीवियर बर्न जो है उनको डॉक्टर ही ट्रीट कर सकते हैं. Chemical burns. Remove any clothing from the affected area. Use plenty of water to wash off the chemical. Cover the burn with sterile gauze and send for the doctor. अगर केमिकल बर्न्स हैं तो क्या करना है, अपनी क्लोथिंग रिमूव करनी है अफेक्टेड एरिया से, प्लेंटी ऑफ वाटर का यूज़ करना है उस केमिकल को वॉश ऑफ करने के लिए, देन बर्न को कवर करना है स्टेराइल गॉज से, एंड देन यू कैन गो टू द डॉक्टर. Do you know the mosquito repellent spray generally used in our homes is highly inflammable? If sprayed near a burner, it will immediately catch fire and may even explode. Thus, such substances should be handled with great care near the fire. देखिए आपके जो मस्कीटो रिपेलेंट स्प्रे होते हैं वो जनरली आपके हाईली फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि अगर आप जैसे कभी इसको बर्नर के पास अगर स्प्रे करेंगे तो इमीडिएटली फायर पकड़ लेगा और एक्सप्लोड हो जाएगा. तो ऐसे सब्सटेंसेस को बहुत ही सावधानी के साथ आपको हैंडल करना चाहिए जब भी आप आग के पास हो. Hazards of fire. Fire is a necessity, but it can be dangerous too. If handled carelessly, fire accidents can happen anywhere. Some examples of fire hazards are as follows. Kitchen fire. It is caused due to the leakage of gas from the gas pipe or burner. Electrical fire. It is caused due to a fault in the wiring, broken plastic cover on the wire, and operating too many appliances at the same time in one socket. Other domestic fires. These are caused due to mishandling of matchsticks and other inflammable objects. Synthetic clothes can also catch fire easily and result in fire accidents. Fire hazards can be prevented by following some safety rules. Electrical appliances should be checked regularly for any faults. We should not wear clothes like nylon while cooking. Gas pipes should be checked regularly for any leakage. All doors and windows should be opened in case of gas leakage. Electrical switches should not be operated in such areas. अब देखिए आग जो है आपके लिए नेसेसिटी भी है, राइट, लेकिन इससे ये आपके लिए काफ़ी नुकसान भी कर सकती है. जैसे कि अगर कभी किचन में फायर हो गया, ये ऐसे होता है जैसे गैस लीकेज हो गया या गैस पाइप से या बर्नर से. इलेक्ट्रिकल फायर होता है कि वायरिंग में कोई फॉल्ट हो जाती है या आपका जैसे जो ब्रोकर प्लास्टिक कवर ब्रेक हो जाता है, एंड आप या तो बहुत सारे अप्लाइंसेस को ऑपरेट कर रहे हैं सेम टाइम में एक सॉकेट में. बाकी दूसरे डोमेस्टिक फायर्स भी हैं, जैसे कि मैचस्टिक को आपने मिस हैंडल किया, उसके ढंग से नहीं उसको हैंडल कर पाए, राइट. सिंथेटिक क्लोथ्स जो हैं फायर बहुत इजीली पकड़ लेते हैं जिससे कि फायर एक्सीडेंट हो सकते हैं. तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को आपको रेगुलरली चेक करवाना है कि कहीं उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है. सिंथेटिक क्लोथ्स कभी भी नहीं पहनने हैं जैसे कि नायलॉन के होते हैं जब आप कुकिंग कर रहे हो. गैस पाइप्स को रेगुलरली चेक करना है कहीं कोई लीकेज तो नहीं है. जितने भी डोर्स एंड विंडोज़ हैं उनको ओपन कर देना अगर गैस लीकेज है तो. और अगर इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इस केस में आपको बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करने, यानी अगर कोई भी स्विच ऑन है तो उसे ऑफ ना करें और ऑफ है तो उसे ऑन बिल्कुल ना करें.
Firefighting. To put out the fire caused due to various reasons is known as firefighting. A fire can spread to large areas if it is not put out on time. If a fire breaks out anywhere in your surroundings, inform the nearest fire station immediately. Firefighters normally put out fire using water. We can put out fire by any one of the following ways. Cutting the supply of air to the burning object, cooling the burning object. अब देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, जैसे किसी बिल्डिंग में ही लग गई, राइट, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ता है। अब ये क्या करता है, जैसे कि आपका ये आपके सराउंडिंग में कभी भी हो सकता है, राइट, कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एयर की सप्लाई को आपको कट ऑफ करना है और इसके बाद आपको बर्निंग ऑब्जेक्ट को जो जल रहा है उसे कूल करना है। Fire extinguisher. A fire extinguisher is a special red colored device that is used for putting out fire. If a fire breaks out, the pin of the nozzle is pulled out and the gas, carbon dioxide, is sprayed on the burning object, which forms a layer on the burning object, cutting the air supply and extinguishing the fire. It can be used in case of electrical fires as well. अब फायर एक्सटिंग्विशर जो है आपका, आपने देखा भी होगा, देखिए रेड कलर्ड का ये इस तरह से डिवाइस होता है जो कि आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसको सब, जैसे कहीं पे भी फायर ब्रेकआउट होती है तो जो पिन होती है नोजल को उसको पुल आउट किया जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिससे कि एक लेयर बना देती है बर्निंग ऑब्जेक्ट से। कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बनेगी तो जो एयर का सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, जिससे आग आपकी बुझ जाएगी। लेट अस रिमेंबर, वी मस्ट ओबे सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड एंड फॉलो रोड साइंस. Help given to a patient before the arrival of a doctor is called first aid. Never neglect a wound as germs may cause infection. An unnecessary movement of a broken bone should be prevented. Treat a burn by washing it with running cold water and applying an antiseptic lotion. Cutting off the air supply helps to put out a fire. A fire extinguisher is a special red color device that is used for putting out fire. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आप ये सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।